مرکزی ادارے جب تعطل کا شکار ہو گئے اور حالات ان پر اس طرح سے آئے تو سب کی نظر منیر صاحب کی طرف جاتی تھی کہ آپ اٹھیں اور اس کو دوبارہ جان ڈالیے، اور منیر صاحب جو ہے ورکنگ کمیٹی کے اعتبار سے اور کنوینر کے اعتبار سے، انعام کمیٹی کے کنوینر کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھتے تھے اور اس کے اندر نئی روح ڈالتے تھے۔ منیر صاحب کے بڑے خدمات ہیں، ان کی طرف اس ایمبولینس کا انتظام حقیقت میں ان کو زندہ جاوید رکھنا ہے اور ان کی خدمات کا احترام ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں YMSA کے نوجوانوں کو بھی کہ آپ کا عنوان یہ ہے کہ ایک مسلم سروس کے معنی خدمات ہے، تو مختلف خدمات کے شعبوں میں آپ کو آگے آنا ہے۔ یہ طبی خدمات اور لوگوں کی سہولیات کے لیے آپ کا اقدام بڑا نیک کار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حقیقت میں لوگوں کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہاں ضرورت اوپر سے دکھاوے کے لیے اور مختلف شوشا کے لیے اور جس امید طور پر جو کام کیا جاتا ہے وہ جھاڑ بن کر کے وقتی طور پر رہتا ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہاں حمایت لوگوں کے لیے جو فائدہ پہنچانے والے کام ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں، اس کے اثرات تازے رہتے ہیں، اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انہی مقصد کے ساتھ یہ سروس کا انتظام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے گی اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ایک نیا باب شروع ہوگا اور جو مریض ہیں بیچارے پریشان ہیں ان کے لیے ایک اچھی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سروس کو قبول فرمائے، ان کے خدمات کرنے والوں کو قبول فرمائے اور اس کے سچے اثرات مرتب فرمائے اور ہم سب کو اس وبائی امراض سے عافیت نصیب فرمائے اور دنیا کے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب مراحل کی گئی ہے اور اس کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس ایمبولینس کو اس شخصیت کے نام سے موسوم کیا گیا، ان کے تعلق سے بہت سی باتیں سامنے آئی، وقتاً فوقتاً ان کے متعلق باتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ ہماری قوم کے محفل تھے، جامعہ اسلامیہ کے بانیان میں سے تھے اور کئی ایک اداروں کے نہ صرف بانی رہے، سرپرست ہے، بلکہ اپنی آخری دم تک، زندگی کے آخری دم تک وہ متحرک آدمی، ان کے لیے شاید ہی بیٹھنا ممکن ہی نہیں تھا اور کوئی زیادہ بیمار بھی نہیں رہے، بس ایک دو دن کا معاملہ تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلتے پھرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، قوم کی خدمت کرتے ہوئے، خصوصاً اپنے لوگوں کی خدمت ہو یا غیروں کی خدمت ہو، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ اللہ آپ پر نظر کیے ہوئے ہے، نظر عنایت کیے ہوئے ہے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں اور آپ کا نماز پڑھنے والوں کے خاطر یعنی عبادت کرنے والے مسلمانوں کے خاطر آپ کا محنت کرنا، کوشش کرنا، ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کیے ہوئے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو خطاب کر کے بات فرما رہا ہے کہ ایک طرف عبادت، دوسری طرف خدمت، اور خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت۔ اسلام کے اندر مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ بھی انسانیت کے ساتھ خصوصی خدمت کی طرف توجہ دی گئی، اس پر ابھارا گیا اور انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ تک اچھے سلوک کرنے پر اسلام کے اندر ابھارا گیا۔ ایک ایسے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہمیں زندگی ایسی بھی گزارنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے انسانیت کا بھلا ہو، اللہ کے جو بندے ہدایت سے محروم ہیں، دین سے
ایمان سے دور ہیں، ان کے سامنے کم از کم ہم اپنی زبان سے نہ صحیح، کم از کم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے سامنے دین کا پیغام رکھنے والے ہوں۔ ہمارے معاملات ان کے سامنے کچھ ایسے ہوں کہ اس کو دیکھ کر ہی صحیح وہ لوگ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں، سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر یہ لوگ کس دین کے ماننے والے ہیں۔ جہاں اپنے حق کا معاملہ ہوتا ہے، مالی حقوق کا، وہاں پر کچھ تنازل بھی ان کے معاملے میں ہم اختیار کر لیں تو وہ لوگ سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنی عملی طور پر ان کے سامنے دعوت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ وقت قریب ہوگا، ہمارے حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میں اس موقع پر ہمارے حکیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دونوں اخوی حضرات بھی قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک آخری بات، آدمی کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا ہی ہم خدمت کریں گے، نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہو، پیسے کے ذریعے بھی خدمت ہوگی، پیسہ نہ ہو تب بھی ہم جو ہے قوم کی اور انسانیت کی بھلائی کے کام ہم کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہو ہمیں اپنے لیے خدمت کے مواقع کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کا مسلم سروس ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ آپ کے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، ہم سبوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے درمیان جس شخصیت سے ہمیں ایمبولینس منصوب ہے، ان سے زندگی، ان کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والے، قومی اور ملی کاموں میں ان کے شانہ بشانہ ساتھ رہنے والے، چاہے وہ جامعہ اسلامیہ کے انتظام و انتظام کے تعلق سے ہو یا دیگر اداروں سے، جامعہ صالحات کے تعلق سے ہو یا موقع میں قیام کے دوران ہو، تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کے کاموں میں شریک رہے۔ میرے مراد جناب مولانا عبدالعزیز صاحب فاطمی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس موقع پر اپنے تاثرات مختصر اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الصالحین۔ اس وقت ہم یاد کرنے کے لیے کھڑے ہیں ہمارے محسن قوم مولانا منیر صاحب کو۔ منیر صاحب کو جس انداز سے میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو، اس لیے کہ منیر صاحب نے بمبئی میں احمد غریب صاحب کے انجمن خدام النبی میں جو خدمت انہوں نے کیے ہیں، اور اس وقت جو ان کا کوٹی بولتا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا ڈائنامک انسان بہت کم قوموں میں ہوتا ہے۔ عجیب انسان تھا، کوئی اپنی نیند کی، کوئی اپنی صحت کی، کوئی اپنی آرام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ الحمدللہ ان کو میں نے دیکھا ہے رات بھر جاگ کر انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں حجاج کی خدمت کی ہے، اور الحمدللہ احمد غریب ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ احمد غریب نے کہا کہ منیر جو کرے وہ ہمیں منظور ہے، منیر جو کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ حج کمیٹی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ جو وہاں جو جہاز چلاتے تھے، جہاز جو جہازیوں میں لے جاتے تھے، ان کے مینیجر بھی سعید صاحب تھے، اللہ ان کو بھی لگے رحمت فرمائے۔ سعید صاحب تھے، وہ کہتے ہیں منیر جس کو کہے گا ہم بھیج دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا منیر صاحب کے پاس اور کہا کہ منیر مجھے حج کو بھیجو۔ ارے بھائی نہ یہ کوئی وقت نہیں ہے، 2-3 دن میں جہاز جانے والا ہے، کیسے تم جا سکتے ہو؟ کہاں نہیں تم بھیج سکتے ہو۔ پریشان ہو گئے، یہ سر ہو گئے تھے اور وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ گئے سعید صاحب کے پاس، کہا ایک سرفر آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حج کو جانا ہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہے، حج کو جانا ہے۔ سعید صاحب نے کہا ایک کام کرو، چپکے سے کل ایک سیٹ خالی ہوئی ہے ان کو دے دو۔ ہاں اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، انہوں نے ان کی اتنی تعریف کی۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، انہوں نے منیر صاحب سے کہا کہ منیر
आप हमें हज को भेज सकते हैं। हम तमाम दरवाजों पर जाकर आए, हज कमेटी में गए और पानी के जहाज वालों के पास गए, कोई हमें घास नहीं डाल रहा है, आप हमें भेजिए। मुनीर साहब ने कहा वक्त बहुत कम था, इस वक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने फिल्मबदी वहीं बैठे बड़े अशार लिखना शुरू कर दिया और कहा कि जब मुनीर ही नहीं कर सकता है तो कौन करेगा। लेकिन उसके बाद उनकी भी किस्मत में था कि वो हज पे चले गए। एक वाकया मुनीर साहब का, मुनीर साहब खुद बयान करते थे। एक शख्स आया, मुनीर हज पे जाना है, भाई तुम्हारे पास पासपोर्ट है, टिकट है, पैसे हैं? उसने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे हज पे जाना है, मुझे बुलावा आ गया। मुनीर साहब ने कहा पागल हो गए हो, कैसे जाओगे? पासपोर्ट जरूरी है, पैसे जरूरी हैं, चलो पैसे का हम इंतजाम कर देंगे, पासपोर्ट तो लाओ। नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मुनीर साहब वो हज जाने का हज से रवाना होने वाला था। मुनीर साहब के साथ में भी जहाज पर जाया करता था खिदमत करने के लिए, मेहरान बादशाह भी आया करते थे। तो वो आज जब वो लंगर उठा दिया और आज जब जाने लगा तो वही शख्स वहां से इशारा कर रहा है, मुनीर मैं हज को जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मुनीर साहब घबरा गए कि उसके पास पासपोर्ट है, टिकट है। वो क्या किया, उसने क्या किया कि सामान कुल्लियों की तरह उठाया और जहाज पे चढ़ गया और वहीं पर रह गया। मुनीर साहब ने कहा ये मुसीबत चला तो गया है, वहां कैसे उतरेगा, वहां से उतर कर फिर वापस कैसे आएगा, परेशान है। चंद दिनों के बाद जब आप जहाज वापस आया तो उसी जहाज पर वो इशारा कर रहा है, मुनीर में हज करके आ गया। हज को बुलाना चाहते तो अल्लाह ताला इस तरह बुलाते हैं। मुनीर साहब ने हज की बहुत खिदमत की है, हाजियों की, वही उनके लिए खिदमत काफी है। अभी जो पानी की तस्करा किया, वाकई ठंडा पानी मुनीर साहब खुद ठंडा पीते थे और दूसरों को ठंडा पिलाना चाहते थे। गोरा गोरा बदन था, बहुत प्यारे प्यारे इंसान थे, चेहरे पर एकदम यानी क्या लाल लाल चेहरा था। तो वो अपनी पीठ के ऊपर जो बर्फ की सील लेकर भागते थे तो लोग देखते रह जाते थे, ये क्या है, क्या कर रहा है। और उसी को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये उस दौर से पानी, ठंडा पानी का इंतजाम हुआ। मुनीर साहब को मैंने बहुत से हालतों में देखा, जामिया के जहाँ से ताल्लुक था, वो जो इसके नाज़िम बने तो जामिया जब भी किसी कठिनाई में आए, हालात तो आते ही हैं, अभी भी हालात आए हुए हैं कि बहरहाल उस वक्त बहुत परेशान थे। मुनीर साहब को जाना था फजर में 5 बजे की फ्लाइट से, 1 बजे तक मैं उनके पास था। 104 डिग्री उनको बुखार था। मुझे अजय ने कहा था कि बहुत से नौजवान हैं जो मुनीर साहब की हकीकत को नहीं जानते, उनको कुछ बयान करना है, तो मैं बयान कर रहा हूँ। 104.5 डिग्री उनको बुखार था। मैंने कहा मुनीर साहब अभी तुम कल का सफर नहीं करोगे, तुम यहाँ कहा बोले काम करो, तुम चले जाओ फजर की नमाज पढ़ कर आओ, मैं इंशाल्लाह सफर नहीं करूंगा। मैं फजर की नमाज करके वहाँ पहुंचा उनकी किताबों की दुकान में, तो देखा क्या पता चला कि मुनीर साहब जा चुके हैं। वो जब काम करने पर आते थे फिर इधर उधर नहीं देखते थे, हर काम करते ही चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने अभी बच्चों को कबूल फरमाया है। बच्चे मैं समझता हूँ अपनी खिदमत वालिद के नहीं कर सके थे, लेकिन अजीजा ये आता है कि जो वालिद जो ज्यादा खिदमत नहीं कर सका, इंशाअल्लाह उनके इंतकाल के बाद वो उनके लिए 20 साल सवाब करेगा तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाएंगे और उनको भी जन्नत नसीब फरमाएंगे। मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए ये जो एम्बुलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जरूरी है भटकल में। ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि इसको और ज्यादा मॉडर्न होना है, इसमें वेंटिलेटर लगना है और इसमें ऑक्सीजन का इंतजाम होना है, बहुत जरूरी चीजें इसमें बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब यानी हम हमारे रहमान ने इतना किया है तो वो भी करेंगे। और अभी तो वो डॉक्टर भी बनकर बैठ गए हैं माशाअल्लाह। इससे पहले हवाई जहाज भी पायलट भी बन गए थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको सियासत से रखे, आफियत से रखे और अल्लाह ताला उनसे खिदमत ले। कोविड सेंटर टाइम हुआ, उसमें तमाम लोग शरीर रहे और दिलचस्पी से हमारे रहमान साहब भी उसकी खिदमत में बेहतर रहे और बहुत दिलचस्पी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन के अंदर जो हालात थे और बहुत से माशी एतबार से कमजोर या माशी एतबार से जिनको परेशानियाँ हुई, उनके लिए राशन वगैरह का इंतजाम जो बचेस्ता तंजीम की तरफ से होगा, इब्तिदा में कुछ लोगों के हमारे भारत की तरफ से होगा, उसके अंदर भी उनका बड़ा हिस्सा रहा, माली ताउन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करें और इखलास के साथ काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे दरमियान बच्चों के हालात के अंदर जहाँ
डॉक्टर मरीजों की मुआयना करने से इनकार कर रहे थे या पदोपेश कर रहे थे या के उस सिलसिले में एहतियात कर रहे थे, तो हमारे ये कौम के एक डॉक्टर और खुद डॉक्टर के फर्जन हमारे जनाब डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब ने बगैर किसी खौफ खतर के और लोगों की तिब्बी इमदाद के लिए, तिब्बी ज़रूरियात के लिए अपना तिब्बी मुआयना जारी रखा और बगैर किसी खतरे के अपने आप को खतरा में डालते हुए हर मरीज का मुआयना करते थे, उनके लिए दवाएं तजवीज़ करते थे। वो भी अलहमदुलिल्लाह मौजूद है। और क्योंकि तिब्बी मामला है, एम्बुलेंस और इस तरह की चीज़ें, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि उस मौके पर वो भी अपने कुछ तासुरात पेश करे। जनाब डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब। Respected dignitaries of the dais, Janaab Mufti Abdul Rahman, President of the dais, and Maulanas of Jamiat, and public schools, Jamiat Sandhya, everybody. I think I'm going to Maga English of the Salam. आज ये एम्बुलेंस है जो एक इफ्तिताह करते वाले जो जनाब अलहाज मुनीरी एम्बुलेंस हो, यानी मुनीरी एम्बुलेंस जो मुनीरी अतिपुरामान साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह की खिदमत जो गाँव पेश करूँ स्टार्ट केला अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो नहीं करते वाले गाँव नहीं का संगीत में बरकते वाले मुनीरी अतिपुरामान साहब अल्हम्दुलिल्लाह जितने मानसा में जो इनका सांगता है वो मानसी वाले जो मजबूर वाले जो दारू को चाहते थे काम करना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला त्यांचा विशेष खिदमत पुढच्या दुआ करा इंशाअल्लाह आमीन। त्याच्यामध्ये हे ॲम्ब्युलन्सला विद्यार्थी असे ॲम्ब्युलन्स एक चीज अशी आहे की ॲम्ब्युलन्स गावासोबत का सबब यूज करतात ॲम्ब्युलन्स सबब दोन चीज है, एक प्राइवेट एम्बुलेंस है, एक पब्लिक एम्बुलेंस है। प्राइवेट एम्बुलेंस का सबब यूज करतात, प्राइवेट एम्बुलन्सनंतर का अशा होतात एक निकी फॅसिलिटी मिळतात प्रायव्हेटायझेशन, यानी माणूस प्राइवेट एम्बुलेंस गेला की इनाम जाता ते सगळं प्राइवेट एम्बुलेंस यूज जातात। पब्लिक एम्बुलेंस जो असेल त्याचा माणूस जो पब्लिक एम्बुलेंस वाटे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल ॲडमिट राहता या पण प्राइवेट हॉस्पिटल ॲडमिट राहता, मगर त्याच्या ॲम्ब्युलन्सची जरूरत नाही, मगर तो हॉस्पिटलातून घरी बसू का त्याच्या ॲम्ब्युलन्सची जरूरत आहे तरी तो सिर्फ पब्लिक एम्बुलन्स बसू शकता, प्रायव्हेट बसू शकत नाही। यानी प्रायव्हेट तिथं जरा कॉस्ट को राहता आणि त्याची फॅसिलिटी पण इतकी राहता, यानी दोन टाइपचे ॲम्ब्युलन्स राहतात। यानी गावात अल्हम्दुलिल्लाह आयचे दिसा ॲम्ब्युलन्स बनी झाली माशाअल्लाह, मगर मैं यही चाहता कि एम्बुलेंस का सामान इम्पोर्टेंट गाँव भीतर आज एक इमरजेंसी सेंटर ओपन होगा, एक ट्रॉमा सेंटर होगा। मैं हे चाहते वाटे की एम्बुलेंस सामान इम्पोर्टेंट आयचे दिसा बिली आमच्याकडे मैं मुनीरा अतिक्रमणात साहब एक हे ॲडवाइस देता की इंशाल्लाह एक ट्रॉमा सेंटर गाँव भीतर आज इमरजेंसी मध्ये भी किसी के एक बड़े हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल त्याची जरूरी बनली है। आज गाँव भीतर एक फिजिशियन नाही, एक फिजिशियन मतलब गाँव भीतर नाही, यानी कोण फिजिशियन तुला नागपूर फटवगास या मैंगलोर फटवगास ते सब बोलले मैं ये चाहता कि गाँव भीतर एक निकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बड़ी इम्पोर्टेंट है गाँव आयचे दिसा। मैं इंशाल्लाह एक जरा गाँव भीतर एक हॉस्पिटल ओपन तुमच्या सबब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अतिपुरामान साहब ने सांगता कि इंशाल्लाह तुम्ही काही जरूर इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहे मला भीतर आणि आमचा इंशाल्लाह जरूर सपोर्ट है इंशाल्लाह। आणि हे गाव करिता आज व्हायरस आहे यानी वबा आहे तिथे, वो व्हायरसा सबब आज माणसे सामून घराभीतर घेऊन बसला। मी म्हणता की ही माणसे जेटली वाटे घराभीतर ऑक्सिजन घेतात घराभीतर बसतात। आज आमच्या गावाभीतर एक कोविड हॉस्पिटल ओपन केला, आमचे मुनीरी साहेब, युनुस काजिया साहेब आणि INF तुकुर आहे आणि तंजीम मिळून एक ओपन केला प्रांतातून, यानी ती एक कोविड हॉस्पिटल ओपन केलं मतलब काय का तुला माणसासमोर खिदमत केला आहे या तुम्ही ये हॉस्पिटल भीतर मैं सामा येऊन सांगे नाही जो खाली घर बड़ी टाइप धग रहा खाली कोविड धग रहना धग यानी वर्षित जगह आहे वो एक व्हायरस जो असे तो जो व्हायरस त्याचा माणसा एक दोन दिवस तीन दिवस धग येता खोकलो येता शेर खाता जाऊ शकता की वो व्हायरस को जाऊ शकता माणसा दुसरं इन्फेक्शन आहे ग्रीन ट्रॅक इन्फेक्शन आहे नातला कोणतं इन्फेक्टेड बॉईल्स आहे त्याचे खूप धग येतात माणसे आम्ही मी हे सांगायचे कोणी घेऊन आहात धग बदली टाइप धग आहे खाली कोविड धग नाही मगर तुम्ही येऊन एक टेस्ट करा घरामध्ये बसून आहात
घरात जर बसून त्याच्यामध्ये सॅच्युरेशन खाल गेला मग कोणी काही करू शकेल नाही. सॅच्युरेशन 90% खाल गेला मग भली तकलीफ जाता. इमर्जन्सी भितर गावात जर कोणती चीज नाही एका वो ओपन केला अल्हम्दुलिल्लाह एका माशाल्लाह पेशेंट्स को तिका वाटे जो भली बोगरो तो इंडियाना थ्रू एसोसिएशन करून ओपन केला तंजीम आयने बनी राबिता मिळून एका जेटलो को डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स वाटे अल्हम्दुलिल्लाह निकी एक्सपीरियंस आहे त्यांना नर्सों को भली एक्सपीरियंस वाटे मोठेकडे घेतले पेशंट येते वाटे मी गावात त्याचा कोविड टेस्टचा एक जरा प्रॉब्लेम आहे इंशाल्लाह तो को आती बहुत मी इंशाल्लाह देता मोठी खिदमत झाले इथे अल्लाह त्याचे सबब मी काय का तुझा गावात येऊन असली माणसे आमची जेटले घरात बसला आम्ही त्याला एटले हे करता की तुम्ही घरे भीतर कोणता खूप प्रॉब्लेम आहे डॉक्टर को प्रॉब्लेम आहे इथं डॉक्टर जगह आहे वतर वॅक्सिन होता यानी डॉक्टर बोलून तो ड्यूटी करते वाटे काम करते वाटे आमच्या गावात तर वॅक्स भरली वाटे ते वॅक्सिन होता तो त्याचा 8 दिवस इलाज करता 8 दिवस नंतर निशात नसी को मैं जाऊ डॉक्टर समीरला बैठा है त्याचा आम्ही काय करू शकेल त्याचा 8 दिवस वो इलाज करून ह्याचे भीतर सॅच्युरेशन डाऊन ह्याचे भीतर फीवर कंटिन्युअस ह्याचे भीतर एलडीएच टेस्ट डाऊन ह्याचे भीतर फेरिटिन लेवल हाई जाता ही सवय हाई झाला मग कोणी काय करू शकेल त्याचा मॅंगलोर आमका असली फॅसिलिटी गावात तर ती फॅसिलिटी नाही ते जर मी एक छाता की तुम्ही झाले इकडे घरात त्याची माणसं वाढे अगर कोण तिला एक माणसाचा बाब सगळे घर खराब जाता ते घरात सगळी कम्युनिटी स्प्रेड जाता ते सबब ही चीज करू देऊ नका याने तुम्ही झाले ते दक्कन कोशिश करून जो माणसा जरा पण घेता लाईट न घेता तुम्ही एक डॉक्टर कन्सल्ट करा फार्मसी वसून माणसे आजकाल फार्मसी होतात अगर मला दर घ्यायला मला खोकलो आहे तर टॅनिक देणार की कोणती टॅनिक देऊ तो तुम्ही पलवतास के लंग्सात कॉन्सन्ट्रेटेड आहे का काय शेती चीज पलवतात खाली टॉनिक घेऊन केला जाणार टॉनिक घेऊन तुला तो माणसा बिमारी येतात क्रिएटिनिन ऊपर एकता ब्लड युरिया ऊपर एकता त्याचा काय करू शकता कोणी काय करू शकेल हे सबब डॉक्टराकडे बसून डॉक्टरांचं मागदा घेऊन तुम्ही डॉक्टराकडे ॲडवाइस देणार आणि जेटली माणसं वाटेल ते मैं बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट छाते वाटे के ही चीजें सबब तुम्ही डॉक्टराकडे कन्सल्ट करा यानी आपले फॅमिली डॉक्टर मी म्हणलं की मोठेकडे या वाटे गावात तर भली फॅमिली डॉक्टर्स वाटे ती डॉक्टराकडे तुम्ही कन्सल्ट करा त्याच्यामध्ये जो असे अगर त्यांच्या भीतर काही 2 दिवस दिक्कत झालाय आम्ही त्यांना रेफर करू का त्याचा कोविड हॉस्पिटल आहे मी त्यांना तिना अल्हम्दुलिल्लाह बरी पेशंटला रेफर करतो वाटे आणि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 पेशंट डिस्चार्ज झाले वाटे इंशाल्लाह भी 2-3 पेशंट वाढे ते इंशाल्लाह जो टाइम झाला डिस्चार्ज झाले तेरे समोर मी एक छाता हो व्हायरसचा घेऊन काही घेऊन व्हायरस तुमका अल्लाह शिवाय दुसरं कोणी काय करू शकेल नाही मौत आहे बरा आहे हा तो अल्लाह तुझे मगर व्हायरसचा तुम्ही घेऊन आहात दिमागातून काढा की वो व्हायरस तुमका मारू काढा नाही मारू काढताना परोका मारू अल्लाह मारू करू शकता मगर वो व्हायरस काही करू शकेल तुमका एक मामूलीशी एक धक्कोशी व्हायरस हो तुम्ही काही घेऊ शकता इंशाल्लाह मैं ये सांगून मैं मुबारकबाद देता है समाज खास करून वायएमएसए जो क्लब है वायएमएसए एसोसिएशन जो है त्यांना खास करून मुबारकबाद देता आणि आमची प्रमुख सभा आणि खास करून आमची डायट रेसिपी माणसं आणि जेटली माणसं आयला त्यांना मुबारक देता आणि मैं खत्म करता इंशाल्लाह एक भटकल की पहचान मुल्क भर में और मुल्क के बाहर भी भटकल को लोग मुनीर साहब को जैसे पहचानते थे मुनीर साहब के बाद इस जमाने में भटकल की पहचान हमारे मौलाना इलियास साहब जाके नजदीक हो गए हैं मुल्क के अंदर मुख्तलिफ दानिशवरों उलमाए कराम मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों के जिम्मेदारान से उनके रवाबित हैं मुल्क के बाहर भी बहुत से ममालिक का उन्होंने अपने दावती असकार किए हैं और खुद मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी जो कि दीनी तालीम याफ्ता तबके के दरमियान स्कूल कॉलेज के तलबा तालिबात के दरमियान दीनी तालीम को आम करने की तहरीक है उस प्लेटफॉर्म से जो उनके ताल्लुकात मुल्क भर के दानिशवरान से हैं दुनिया भर के तालीम याफ्ता तबके के जिम्मेदारान से हैं और आज अल्लाह के फजल से वो भटकल की पहचान कर गए हैं और उनके तवज्जुह से मुल्क भर की बड़ी बड़ी शख्सियत और दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियत भटकल तशरीफ लाई और भटकल के माहौल को यहाँ के समाजी और मिली और कौमी और तालीमी इदारों को उनके कामों को देता है मेरे मुराद के मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी के बानी और जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस मौके पर अपने साथ रखें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रत बहुत सारी बातें हज़रत मुनीरी साहब मरहूम के सामने आ चुकी हैं और उसी के साथ मदखल का अल्लाह के पास जो अज्र है और उसके जो नताइज दुनिया में मुरतब होते हैं, इस पर भी हमारे उलमा किराम ने रोशनी डाली है। मैं समझता हूँ कि आप मज़ीद किसी बात की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 15 दिन से बीमार था, लेकिन इस दौरान मुझे कई जगह से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बुलाया गया, लेकिन मैंने माजरत की। लेकिन कल मेरे अपने मोहसिन और मुरब्बी और मेरे अपने ज़ाती सरपरस्त हज़रत मुनीरी साहब के ताल्लुक़ से जब अतीफ़ भाई ने कहा, उन्होंने कहा बुखार भी रहेगा और मुझे चलना भी नहीं होगा, मैं कम अज़ कम उनके एहसानात को सामने रखते हुए कम अज़ कम हाजिर तो ज़रूर होता हूँ। इसी निस्बत से मैं हाजिर हुआ हूँ और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे जनाब हज़रत अतीफ़ुर्रहमान साहब को कि उन्होंने दुआएं लेने का एक सिलसिला शुरू किया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बददुआ और सबसे ज़्यादा दुआ किसको मिलती है? एक पहेली है। सबसे ज़्यादा बददुआ मुझे माफ़ फरमाएं, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टरों को मिलती है, हॉस्पिटल वालों को मिलती है। जिस जगह वो लूटते हैं और इंसानियत के नाम से जिस तरह इस्तेहसार करते हैं, इतना माशाअल्लाह, मैं अपनी बड़का की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। आज इंसान जैसे शैतान से पनाह मांगता है, आज हॉस्पिटल और बीमारी से पनाह मांगता है। सामने नहीं देखता आदमी, डॉक्टर हॉस्पिटल वाला, उसकी जेब में पैसा है क्या नहीं, मुझे उससे चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे उसको 10 दिन रखना पड़े, लेकिन यह सबसे ज्यादा बददुआ मैंने इस पर मजमून लिखा था, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ सिर्फ डॉक्टर से। 10 मिसालें मैंने उसमें दी थी, मौलाना ख्वाजा साहब की वालिदा की मिसाल भी उसमें दी थी। कैसे कैसे लोग धोखे में रखते हैं। कैंसर नहीं है और बताया जाता है कैंसर है, दूसरी जगह जाके मालूम कैंसर नहीं है, लाश पड़ी हुई है, हाथ में नहीं ले रहे हैं, पैसे का मुतालबा कर रहे हैं। मुझे माफ करना सबसे ज्यादा, लेकिन आज सबसे ज्यादा दुआ भी डॉक्टरों को मिलती है। अच्छे जब डॉक्टर होते हैं, दिल से जो दुआएं निकलती हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर के अलावा किसी को और नहीं मिलती है। इंसान सोचता है कितने कैसे डॉक्टर्स हैं आज। मैंगलोर में जानते हैं, मैं मौलाना उसामा साहब का एक डॉक्टर है, 20 मिनट तक हमारे जो है अपने घर वालों को उसने चेकअप किया, ये बीमारी और फिर कहता है कि ये मैं जिस मर्ज का माहिर हूँ, आपकी जो है घर वालों को वो बीमारी नहीं है। मैंने पूछा फीस कितने है? 10 पैसा लेने के लिए तैयार नहीं। 20 मिनट तक उसने चेकअप किया और यहाँ 20 सेकंड डॉक्टर देखते नहीं है। डिलीवरी में जो है वो डॉक्टर की आती नहीं है, डिलीवरी के बाद आके चक्कर लगाई जाती है, 5,000-6,000 रुपया बिल लगा लेते हैं। सबसे ज्यादा बददुआ, सबसे ज्यादा दुआएं भी मैं अतीफ़ुर्रहमान साहब से कहूँगा, मुनीरी साहब के साथ जो लोग हैं एम्बुलेंस शुरू किए हैं, इस पर आप जो है इत्तिफाक करके पर बैठिए, एक ट्रस्ट बनाइए मोहद्दीन मुनीरी साहब के नाम से, और इस ताल्लुक से जो खिदमत डॉक्टरों के बगैर कि आप और हम कर सकते हैं, मुझे और आपको करना। सबसे ज्यादा इस पर डायरेक्शन जो है सेंटर की जरूरत है। आज से 10 साल पहले पूरे शहर में 2-4 पेशेंट डायलिसिस के लिए रहते थे। आज हर खानदान में 1-2 आदमी आपको डायलिसिस का मिलेगा। 3,500 और 4,000 रुपये हफ्ते में, बात लोग तो मुझे माफ करना, अल्लाह हिफाजत करना, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस करना पड़ता। आज एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर 20-25 हजार की मशीन आ जाती है, ऑपरेटर मिल जाता है। अल्लाह देने वाले बहुत है। मौलाना ख्वाजा साहब ने कहा कि आदमी सोचता है पैसे से मैं खिदमत करता हूँ, नहीं है। जितने देने वाले होते हैं पैसे वाले नहीं होते। पैसे वाले देने कम देते हैं और नहीं पैसे वाले ज्यादा देते हैं। आप आइए, मुनीरी साहब के नाम से ट्रस्ट कायम कीजिए, एक डायलिसिस सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, एक डिलीवरी सेंटर होना चाहिए। हम लोग जाते हैं हिंदुस्तान में, आज की बात में कर रहा हूँ, नॉर्मल डिलीवरी 1600-1800, 6,000 रुपये जो है इसके सीजरिंग के। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी में उससे रास्ते में डिलीवरी हो गई, रास्ते में, और वहां से हॉस्पिटल लेके वापस आ गए, 12,000-15,000 का बिल आता। क्या ये वो डॉक्टर नहीं है जो गुजरात में बैठे हुए हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो कमाते नहीं है? हमारे हर मदरसे में गुजरात में छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हैं।
10-20 जो है कमरे शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जैसे कंपनियों की इमारतें होती है, बोले कि इसी पैसे से हमने 6,000 और 8,000 लेकर अब क्या होगा। इस पर सबसे ज्यादा हमें दुआएं देनी है। ये एम्बुलेंस नहीं है, मोहम्मद साहब ने कहा लोगों की दुआ लेने का जरिया है। और मोहद्दीन मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको दर्जा बुलंद करे, सबसे ज्यादा उन्होंने जो कमाया लोगों की दुआएं कमाई थी। वो जो जिंदा थे, जो उनके आज नेकनामी है, मुझे माफ फरमाया किसी से मुआवजा नहीं करता। मरहूम मुनव्वर साहब के इंतकाल को 26 साल हो गए। 1974 में उनका 94 में इंतकाल हुआ था। आज तक जितना तस्करा मरहूम मुनव्वर साहब का भट्टल में होता, भट्टल के आसपास होता है, किसी शख्सियत का आज तक ही नहीं उड़ा। आप नहीं पहाड़ अंजुमन के पहाड़ पे जाइए, वहां जलसा होता है, याद करते हैं कि हमारा पहला जश्न हुआ था, उसकी तंजीम में जाते हैं, कहते हैं हमारी लश्कर के सामने मुनव्वर साहब के जरिए हुई। जमात में जाते हैं, दोनों जमातों को मिलाने की जो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी, उसमें मुनव्वर साहब भेजते। जामिया जाते हैं, रिवायत कॉलोनी आते हैं, आजाद नगर जाते हैं, सुल्तानी मोहल्ला जाते हैं, कहाँ मुनव्वर साहब का तस्करा नहीं होता, किस मजलिस में जिक्र नहीं होता, किस वक्त तस्करा नहीं होता। ये सब जो तस्करे उनके थे, उनकी इल्मी खिदमत की वजह से नहीं, आवाम की जो उन्होंने खिदमत की थी, आवाम की दुनिया में अल्लाह जो देते हैं अवामी खिदमत पर कहते हैं, चाहे काफिर क्यों न हो। इज्जत जो मिलती है, नेकामी जो मिलती है, अल्लाह दीन को नहीं देखते, दुनिया में उसका एतबार होता है। किसका एतबार होता है? जो खुद खिलाए, जो खुद खिदमत करे और दूसरों को खिदमत से उभारे। तो मैं अभी साहब से गुजारिश करूंगा मरहूम मुनव्वर साहब के नाम से एक ट्रस्ट होना चाहिए, जिसमें 2 चीजें बुनियादी तौर पर आप करें। और इसके लिए किसी बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी सरमाए की जरूरत नहीं, यहाँ बैठने वाले लोग मौजूद हैं, हम सब आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। माली ताउन भी करेंगे, अखलाकी ताउन भी करेंगे, डॉक्टर लाकर देंगे आपको, क्या करना है बताइए। मुझे हमेशा लोग कहते हैं आप सब मैदानों में आ गए हैं, तालीम के मैदान इसमें उसमें, आप एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते। मेरे दोस्त का मैं जाके तो 50 लाख रुपया देता हूँ, 50 लाख का इंतजाम करता हूँ, आप जो है छोटा सा हॉस्पिटल खोलने का मसला नहीं, उसको मेंटेन करने का मसला, डॉक्टर का मसला। मुझे मालूम है हमारी डॉक्टरी बिरादरी भटकल में जितनी बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, निफासिया और एमडी और पुना डीएम और पुना कहीं इतनी छोटी कम्युनिटी में डॉक्टर नहीं, लेकिन अपनी कौम को महबूब किए हुए हमारे कौम के कितने डॉक्टर हैं, कहीं के डॉक्टर नहीं है, रिटायर्ड होने पर बैठे हुए हैं, तजुर्बा है। अगर वो रिटायर्ड डॉक्टर की जमात भी तैयार हो जाए डॉक्टर में, मैं तो बता डॉक्टर सफीउल्लाह साहब ने जो प्रॉब्लम बताया 90% वो प्रॉब्लम सो हो जाए। रिटायर होने के बाद करीब में है, महदूद में है, बेंगलुरु में है, बहुत खिदमत करने के लिए तैयार थे। आप जितना कमाते थे उससे ज्यादा मिल सकता। मरहूम मुनव्वर साहब ने जो काम किया वो उससे ज्यादा उन्होंने काम करवाया। लोग कहते मुनव्वर साहब ने ये किया, मुनव्वर साहब ने जितना काम किया मुझे माफ फरमाया, इस एतबार से उनका ताल्लुक नहीं हुआ, उन्होंने काम करवाया ज्यादा है। वो तहरीर करते थे, एक और 2 चीज की नहीं। हमारे मौलाना काजी अता साहब पूरी दुनिया के सबसे बड़े मौलवी अपने वक्त के, उन्होंने देखा मुझे उंगली पकड़कर और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाजार में लाने वाले नहीं, इल्मी दुनिया में लाने वाले कौन थे? मुनव्वर साहब थे। उनको दुनिया की सबसे बड़ी तारीफ हिंद और सिंध पर जो है उनको जनरल जियाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान में बुला के उनको अवार्ड दिया, वहां उन्होंने तस्करा किया। इस किताब के लिखवाने वाले मुनव्वर साहब थे। इस मौजूद पर किसी ने आज तक किताब नहीं थी। 1 और 2 10 और 20 मुनव्वर साहब ने क्या किया? अब्दुल साहब मुझे माफ फरमाए, इनको बीच में लाने वाले मुल्ला हसन साहब, शिकारी मोहम्मद अली साहब ना बैठे थे, मौला साहब का किताब इवन मुल्ला अब्बास साहब के मुताबिक आपने सुना। आज जो कौम की उन्होंने खिदमत की उसका सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़े मुहाजिर मुनव्वर साहब। 1 और 2 कहाँ बताया जाए, इस शोबे में उन्होंने काम नहीं किया। नई नस्ल को उनकी जो है सवाल हयात से और उनकी खुसूसियात से आगाह करने की जरूरत है। मैं वायसे वालों से गुजारिश करूंगा, हमने भी कोशिश की 2002 में 2000 में जब मनाली में इस तरह के करने कायम हुई थी, मैंने कहा सबसे बड़ा हक इस वक्त अगर कोई जिंदा होते खुश होते मरहूम मुनव्वर साहब होते। और हमने वहां पर अपना सबसे पहले यादगार को मरहूम मुनव्वर साहब के नाम से मंसूब किया, मुनव्वर खास लोगों ने बनवाया। और उस पर हमने जब हमारी एकेडमी शुरू हुई थी, सबसे पहले हमने जो पहला काम किया, रहमतुल्लाह साहब बैठे हुए मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त, मकबूल साहब, हमने महदी मुनव्वर साहब इतनी मोटी किताब निकाली, बक्का की तारीफ में आज तक इतनी मोटी किताब किसी पर नहीं आई। तुमको उनके एहसानात, हमें उंगली पकड़ के नहीं। लोग एक मौलाना अब्दुल साहब कहते हैं मैं उनके चौथा बेटा हूँ,
मैं तो बेटा नहीं कह सकता अपने बेटे की उनका नहीं हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मुझे आज भी बहुत पूरे हिंदुस्तान मुझे जानते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मेरे साथ आप होते हैं, आगे खासा बाकी तक यही कहते रहे। लोग कहते हैं कि आपका जो है कोई काम, आपकी कोई बात मियां के जिक्र के बगैर और मुनीर साहब के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हम कैसे भूल सकते हैं? हमें उन्होंने सिखाया, उंगली पकड़ के मैदान में लाकर दिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। क्या नहीं किया उन्होंने? हमारे वालिदैन के बाद हम पर किसी का एहसान है तो मुनीर साहब के यहाँ जितने हमारे साथ बैठे हुए एक एक उस्ताद भी बता सकता है क्या क्या हम लोगों ने हमारे लिए किया। तो मैं हमारे वालिदैन वालों से गुजारिश करूंगा, एक छोटा सा सेमिनार नौजवानों के लिए होना चाहिए और बताना चाहिए मुनीर साहब क्या थे। आज उनके पैसे नहीं थे, बहुत बड़ी तालीम नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था। कितने बढ़कर के इदारे हैं उनकी वजह से कायम हुए। ये वायमेसी नहीं, ये नौनिहाल स्कूल नहीं, ये तेमुनी की मदरसे के मुहल्लिक को जो बताते हैं अब्दुल मालिक साहब, वायमेसी के यहाँ पर जामिया का जो मकतब बना उसकी तहरीक मुनीर साहब ने की। अंजुमन को जो है इमारत बनाने के लिए दिया, अंजुमन की तरफ से खत लिखवाया वहाँ से, और वायमेसी की तरफ से मिलिया की तरफ से मंजूर करवाया और यहाँ पर जो है इमारत उन्होंने बनवाई। एक और दो जामिया सालिहात नहीं, उनके लिए तरह जामिया सरियात काफी था। और भटकर के आज हमारे उलमा की कितनी बड़ी तादाद में है, बार-बार इसका तस्वीर आता है नजमे में पढ़ने की बरकत से। लेकिन नजमे से जोड़ने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? मोहल्ले नजमे से तारुफ कराने वाले कौन थे? मरहूम मुनीर साहब थे। मैं समझता हूँ हम तस्वुर नहीं कर सकते, मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड का सबसे बड़ा जलसा हुआ था हिंदुस्तान में, अब्दुल हकीम साहब छोटे थे उस वक्त, उसकी तहरीक मुनीर साहब ने की। एक और दो की बात कहाँ की बात, कैसी बात गौलानी में साहब कहते थे कि हम तो मुनीर साहब को पहले से जानते थे, भट्टो को बाद में जानते हैं। कितने वाकयात हैं, आज भी लोग मुनीर साहब को जानते हैं, भट्टो को नहीं जानते। अल्लाह गरीब की रहमत करे, उनकी तरफ इंतिसाब के साथ जो काम शुरू हुआ है इंशाअल्लाह बरकत होगी। अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, इन्नल्लाह अल्लाह फरमाता है तुम बंदों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा जिक्र बाकी रखूंगा, तुम्हारे एहसानात का तज़किरा जो है यहाँ बाकी रहेगा। आज उसी की बरकत इखलास के साथ उन्होंने जो किया, अल्लाह जो है वो चीजें उनके बच्चों के अंदर मुंतकिल नहीं कर रहे, बल्कि उनके पोतों और नवासों के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। ये भटकल का बड़ा अलमिया है। हमारे लीडरान के बच्चे लीडरशिप में आगे नहीं जाते, लेकिन मरहूम मुनीर साहब से मुस्तस्ना, उनके बेटे ने आज अब्दुल रहमान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं खलील साहब फजल रहमान साहब की बात नहीं, बड़े मुझे अब्दुल लतीफ और सौगात और उनके कितने नवासे और पोते हर जगह नुमाया नजर आते हैं। इसको मौलाना महमूद साहब ने कहा कि इखलास बढ़कर उसके असरात बाकी रहते हैं। मुनीर साहब मुखलिस थे, आज उनके असरात बाकी है। मुनीर साहब के नाम से यादगार कायम करने की कोई जरूरत पड़ने में नहीं है। कोई कौम का कोई फर्द उनके एहसान का तसव्वुर भी करेगा, फरामोश करने का, उसके अंदर बेबरकती आए, कुछ भी हो जाए बचपन का कदम कदम पर नक्श एक एक नक्श है उनके एहसानात याद दिलाना। ये मिलिया और जामिया और मिसालिहात नहीं, बचपन का हर इदारा, अंजुमन हो, तंजीम हो, हमारी जमात हो, हमारे जो है क्या कहते हैं जामिया इस्लामिया हो, जामिया सालिहात हो, मैं कहता हूँ हमारे इदारे उसके बाद कायम हुए, वो भी रहने जिन्नत हुए, चाहे वो वाली पब्लिक स्कूल हो, मौलाना रसूल इस्लामिक एकेडमी हो, जितने इदारे कायम हुए हैं ये उन्हीं की सोच थी। वो उस जमाने के अंदर उसको मौका नहीं मिला था, इसीलिए आज हम याद करते हैं। वो होते तो आज वो खुशी से खुले नहीं कमाते। मुझे बहुत याद आ रहे हैं, मैं उनके एहसानात को फरामोश नहीं कर सकता, मेरे साथी भी फरामोश नहीं कर सकते। दुश्मन भी जितनी तारीफ मुनीर साहब की करते थे, उनसे इख्तिलाफ करने वाले बनने के बाद लोगों ने देखा होगा किसी की इस तरह की तारीफ आज तक नहीं हुई। अल्लाह उनकी दर्जा बुलंद फरमाए, उनकी नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अमीर साहब को उम्मीद है कि अल्लाह ताला से और काम देगा और वही फुर्सत में एक टारगेट बना के लिए एक इंशाअल्लाह हमें डायलिसिस सेंटर कम से कम बनाना है और डिलीवरी का जो है सेंटर में ऐसा बनाना है। पोस्ट में भी इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ किसी का इलाज करेंगे, डिलीवरी की जो है जल्दी की बराह हल होंगे। आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, हो सकता है कि आप अपने अब्बा से आगे बढ़ जाएं, अल्लाह ताला आपका तस्करा बाकी रखेंगे। लोगों की दुआएं लीजिए, फिर देखिए कि अल्लाह ताला दुनिया में उसके क्या असरात बाकी रखते हैं। अल्लाह इन सब बातों पर तो मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मरहूम मुनीर साहब की दर्जा बुलंद फरमाए, उनकी नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक इनायत फरमाए और उनके नाम की इस से उनकी बरकत से जो काम शुरू हुआ अल्लाह उसकी तरफ खूब बरकत अता फरमाए, इसको आगे बढ़ाए, इसको एक मिशन बनाए, इसको एक तहरीक बनाए और इसको मॉडल बना के दूसरों को भी इसको फॉलो करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाह को पेश किया।
हम सबको इसके लिए आगे बढ़ना है और हमारी मैदान में काम शुरू करना है। उम्मीद के इन बातों से इंशाअल्लाह हम आइंदा का अमल तैयार करके जो कौम मिलत के लिए चीज़ों की ज़रूरत है उसको फराहम करने की कोशिश करेंगे। मैं YMSA के सदर और अलहाज मोहिद्दीन मुनव्वरी एम्बुलेंस को आसिया करने वाले जनाब अशरफ रहमान साहब मुनव्वरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौके की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। डाइस पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम और हमारे कौम, उसके अलावा YMSA के इंतजामिया के मेंबर और मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमें इकट्ठा बैठने का और अपने एहसासात को सामने रखने का अल्लाह ने हमें मौका इनायत फरमाया। जैसे कि मौलवी इजाज साहब ने बताया, मैं बताता चलूं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर ही लिया है इंशाअल्लाह। अलहाज मोहिद्दीन मुनीरी ट्रस्ट बन गया समझे इंशाअल्लाह। फिर मैं नवाजी भी तेरे था कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें इतना एम्बुलेंस पल्ले ये एम्बुलेंस अमी हेजे भीतर जे कुंतो आमचो ट्रस्ट है रातलो तेजे भीतर एम्बुलेंस अलावा पाण्याचो सप्लाय जे कोण ते गरमाटीमा जरूर पडटा ती सप्लाय आणि इमदाद बाहमी एक आमचो बाकायदा 3 वर्षे टुकून एक अदारा घातलोशी जाला तो ते शामिल जातलो। आणि ही जी कोणती म्हाका कळटा म्हाका आठव अशें म्हजे बचपन टुकून बापा एम्बुलेंस गांवांत काम केल्ली आसत जवळ आणि आज तो ख्वाब जे कोणते अशें शर्मुंदा ताबीर जाते अशें आणि तेंचे नावीन देखून मी तुमकां सांगता की इतली एम्बुलेंस गांवां भितर नव्हती ज्यो कोण ती वेंटिलेटर सगळी घातली अशें इंशाअल्लाह आनी करीब तुमकां हेजेर तर वेंटिलेटर मिळतलो। तेजे साथ साथ इंशाअल्लाह एम्बुलेंस वेंटिलेटर अलामत नसकोन जरूरत पड़ता तो कोई इंतजाम जावन जाता इंशाअल्लाह। मतलब हेजे सह बदली में होता कि समाजो कौमाची एक मांग होती। अलावा अजी वो देखून ते हाल भितर दिसला वो हाल आमचे मरहूम वाली साहेबाचे नामाश्री मुंसलक अशे वो ठाव देखून तो YMSA है YMSA चो ठाव कौम आसले आमचे वाले मरहूमची मेहनतचो नतीजा अशे वो कब्रस्तान देखून ते अल्हम्दुलिल्लाह ते आराम पावन वटे वो कब्रस्तान को तरहीन तंजीकत मरहूम ने मिन्नत है अल्लाह बंदा ये आपणाची शायद हम दायित्व को करतले। वाकई भितर म्हाका कळटा बचपन टुकून कौमची फिक्र मरहूम वाली साहेबा इशी होती की आपली खुदची फॅमिली पण ख्याल करते होते। मुझे भीतर में होता तो जज्बा जन्म घेऊन लागला इंशाअल्लाह। अल्लाह करो दुआ करा सही तरीका पर खिदमतची कौमाची तौफीक देव। तुम्ही दुआ करचे की सलाहियत वक्त इल्म आणि जे काय असे कौम मिल्लत आणि उम्मत सबब कुर्बान करूची अल्लाह ताला सही तौफीक अता करे। बिलखुसूस मैं आज हे अपने ऐलान वादे करता कि उलमा इकराम करीन आगे बढ़ून एटली काम केलान एटली मजा येता कि हकीकी मानत भितर सुकून मैसर जाता आणि कामाको तकवीत मिळता आणि बरकतो मिळता इंशाअल्लाह। आमचे मरहूम वाली साहेबाची को एकच आदत होती कि कौमची दानिश्वर साहेब राय आणि लीडराचे साथ साथ उलमाचे तबका को अपने सरी हमेशा करीब धरते होते। हे आपणाची में जिम्मेदारी सरी दलील देता कि बाप आमचे वालदे मरहूम कौमाचे हर फर्ज सरी
वडलाश्री धाकलाश्री सम्माश्री मोहब्बत करते सम्माश्री करते होते अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त हमें सम्मुखों कौमा की फिक्र करिया कौमाश्री मोहब्बत करिया लिहाजा मैं कौमी मिल्ली सकाफती इस्लाही दीनी समाजी माशरती तहजीबी अमली अखलाकी तालीमी फलाही व सियासी कामा भीतर समूह एक जान आगे बढ़लान ती चमक व दमक लाजवाब रखी वो भी मिसाल किरदार अदा कर सकता इंशाअल्लाह रहती दुनिया सर इंशाअल्लाह एक काम अगर हम सही खुलूस तरी करते लेते हमकी पीढ़ी पीढ़ी आगे करते इंशाअल्लाह बस तिची उलमाए किराम सांगले तिची आमका सम्मा एकजूट जाऊन बेहतर तरीका पर कौम मिल्लत की फिक्र करची तौफीक देव अल्लाह ताला असले आमका हर चीजें नवाजला थे आमचे कौमा आमची भावडा अल्लाह ताला आमका साम्य येवन समाजाची कदर करूची आणि आपसा भितर इत्तिहाद आणि इत्तिफाक कायम करची तौफीक देव आणि जे कोण तो मौजी मर्द फिलहाल असे हे पासून अल्लाह ताला आमका समाजान सजन नजात देव आणि अल्लाह ताला हे वाला भितर दिशी उलमा सांगले आमचे दानिशुरान सांगले आमचे कौमाचे जिम्मेदार सांगले आमची तंजीम बार सांगता मजलिस इस्लाह तंजीम तेजे मुताबिक आमका असले बामल रान आमका समाजाची फिक्र करूची आणि समाजश्री युनिव्हर्सिटी तौफीक देव आणि दिशी हे कामा सबब आगे बढ़ूका घरान या महल्ला टुकून या क्लबा टुकून या मिजगता टुकून या फेडरेशन टुकून या लेकिन या सम्मा घेऊन या आम्ही समूह सेहतेन राहा अल्लाह जिंदगी दिली जिंदगी सेहतेन काढ्या पैगाम अबावत करा कि आम्ही जे कोणते वक्ती तौरा पर जो कोणते आम्ही मोहलक बीमारी भीतर वाटे अल्लाह ताला भटकले समर्पया क्लीन चिट करतो इंशाअल्लाह अगर आम्ही मुस्तैदन काम केला अल्हम्दुलिल्लाह आमचे उलमा इकराम वक्ता सांगते वाटे हम फिक्र जरूरतात अल्लाह ताला हमका सम्माको मिलून हे काम करची तौफीक देव बस अल्लाह रब्बुल इज्जत करे दुआ वाटे कि आम्ही सगळी कौम लिल्लाह फिल्लाह सबब अपने आपसी इख्तिलाफ खत्म करून इत्तिहाद व इत्तिफाकचे अलमबरदार जान कौम मिल्लत सर बेबहा खिदमत अंजाम देना इंशाअल्लाह ती मजा कुछ और रखली मैं उम्मीद करता कि आज हमी वो पैगाम ही अच्छा कि हमी सम्मा मोहब्बतें करी चमिया अले एतराज करते ले एतराज बली करते नहीं एतराज करते ले आणि मुश्किलात असे परेशानियों असे उलझनों असे आणि झोल भीतर घालते ले लेकिन एक आपने अटो धरवा इंशाअल्लाह हमी मोहब्बत आणि उखवत से पैगाम से वतले दीनी आणि अल्लाह की रजा से वतले मैं और खता नथिंग इज इम्पॉसिबल we will not keep a single stone unturned एको चीज आम्ही हासिल करच्या सबब आमची कोशिशें भीतर कोणतो कमी होचे ना इंशाअल्लाह आम्ही बढ़िया सभी में होचो अल्लाह ताला सम्मा को अपने जमान भीतर देव दरवो सेहत देव परेशानी पासून नजात देव तकलीफात पासून अल्लाह ताला बरी करो आणि मैं बिलखुसूस सांगता कि अल्लाह ताला जे कोण चाहतात जे कोण की निकी चीजों चाहतात अल्लाह ताला तनका ते जायज ख्वाहिशात पूरा करते ते जिंदगी पर अल्लाह अपनी रहमतों में बरकत अता करो इंशाअल्लाह आम्ही होचो सही होचो सम्मा मिलून होचो सम्मा घेऊन होचो सम्माची मोहब्बत आणि इत्तिफाक करी जे कोणतो आलम बरदार आणि जातले आणि जे कोणतो सुकून जातलो मी वळखता दुनिया से एक मिसाल होगा इंशाअल्लाह कामा अल्लाह आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जजाकुमुल्लाह खैरा जनाब रहमान साहब मंडळी आपले विशेषांनी आपले जज्बात को आणि एक सार्थ विधान करते होते अल्लाह ताला त्यांचा आगे बढ़ो अंजाम दो आणि जज्बात आगे बढ़ो काम करतो मस्जिद मौका तौफीक अता करो ने हरी नमाज में जनाब मौलाना अब्दुल्ला साहब नसीबी नसीबी दफना करता के मुख्तसर आपले साथ एक करते और बाकी तो कंपनी जाते है मुख्तसर आपले अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ala nabiyina मोहतरम सदर अगर उलमा किराम हमारे मिस्टर अली आपके सामने इजलास से रज़ायत यानी ये पता नामी मशरूर जुलत है
त्यांचे हालात त्यांचे खिदमत गोष्टी सामने आले मगों गलत अंदाज में जिंदगी ज्यादा वही चीज धुन होती बहुत ही चीज है कि काम से आपका दिमाग बेटा बिल्कुल चीज राहतात सगळ्यांनी भूक आणि प्यास काय बोलते नव्हते ते काम झालं तर मी चेन येत नव्हतो आज जेव्हा बघतो होतो की एकशेच्या ते कागद आहे आणि कागद आले मागे जबाब दिले काम करतात ते कागद पडले डेव्हलप आता पेन आलं ते कागद फौरन घेतले तर जॉब होतो आणि हे काम टाइम टू टाइम करत होते ते कोणतं साधी झाली आणि जज्बा आणि खूप इसली होती की तो जज्बा त्याच्यावर कारण सांगितलं होतं तो कोणत्या कामाचे खाण नाही थांबला अगरचे मोबाईलवर झाले होते की त्याचे भाऊ तो माणसाकडे होतो त्यांना समजावून तिची रूपावर आपली बरी कोशिश करत होती आणि यांची आमच्या गावाचे होय बोलत नाही की काम करणारी माणसाची गस माणसे काम आला नंतर जे मूर्ती जातात तो माणूस काय केलेलो असा बदल पडला नाही आणि ते जशी खातात याच्याने मला खाते वाटतं केवळ हो का एक माणूस घरे भेटून वाटते त्याच्यावर कोणती त्रास घेऊ देत नाही लेकिन एक माणूस माणसाचं काम करतात त्याच्यातून गलती वर्षभर इंसान गलती झाली बाबा गलती होऊ शकत आहे त्याचे नित्य काम आम्ही पाहून केलं आहे तरी माणूस आगे बसवलेलं आहे तिची आम्ही सांगायचो आमचे सांगायला काम करतो तो काम करतो वाटते काय करतो वाटते कापूच वाटतं खाली त्रास करतो अगर काम करते माणसाचं आणि काम करते आणि आमचं जर झाली तर निधी जो वापरता आहे तर त्याची निर्माण करते तरी इंशाल्लाह आम्ही आगे बढ़ते आणि कामाचं सेवा स्थिती हे जे कोणते काम आपल्याला एक ज्यादा से ज्यादा नामे करो आणि जे कोणते क्लास ते काम करते वाटायला म्हणजे नदी तरफी देऊ आणि शिकस आपला समाव आला आपल्या जोराने कोणाकडे कोण आहे तुला तरी जे कोणाला त्याला आणि मशवराची ताकद लागते द्यायचे तरी या जो कोणी आपल्या हाती पाहिजे त्या मध्ये वगैरे द्यायचे ते लगा करो एक एक खिदमत आम्ही इंसानी सब करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह से तेरे करीब करते हैं जितने येता आप बोल सकते हैं अल्लाह आपको मिलाकर के असर बयान का मखलूक अल्लाह तो या आणि कुंभारी आणि सामान बेहतर अल्लाह करे तो मौलवी निर्मोने अल्लाह की महबूब करे रहता है ताकि हम ये कोशिश कर रहे हो अल्लाह के हुकूक अहकाम पूरा करते इबादत काम करते इंसानी से खिदमत से आगे बढ़ो अल्लाह ताला की माता तफसील करो आणि मैं इनाजे जिम्मेदार के मुताबिक तो मैं मौका पर इजलास करे मानते हैं तशरीफ सबब अल्लाह ताला का कबूल करो एक सामने को मुबारक देना है अल्लाह का दुआ करता कि अल्लाह ताला इन गैला विशेष हर खैर के काम का आगे बढ़ना तो फिर अदा करो बात दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वक्त गुजरते हैं तो प्रोग्राम पर पहुंचे थे मैं मुझे जब बल्ले पर जनाब करीबन हमारा हमें एक हाथ करता कि मुख्तसर अपने साथ रहते हैं अल्लाह ताला को जो एहसान और जो शुक्र से क्या ज़मकार अल्लाह ताला हमसे वाली जो मरहूमी इसमें इनके कस नावाज के जो ऊपर जो हाल मंसूर है इन्हें अल्लाह का से जमा कर दो आणि एक निस्बतें इनके करके इनके ये सारे सवाल सवाल मुझे बुलाया आखिर रहमान मुझे जब मुझे अंग्रेज या जैसे भी जो कुछ शुरू करते हुए एक पिता का नाम का करके जुमा के लो बाकी विकर कुछ नसीब की औलाद जे कोणी अपने माई बापा त्यांची जिंदगी मक्तो कटो ठरवतात आणि कुछ नसीब हे महिला जे गोष्टी जे कोणाची औलाद ते हिंगात को दुनिया को मेरा मकाम त्यांची औलाद त्यांचे सवाब दुआ करता आणि इशारे सवाब करो करने का काम करता अल्लाह कबूल करो मका भजी खुशी जाता आणि मका म्हणजे बाबाचं भजी आठव करता त्याचा सर्व ज्यांना नसीब करो आणि त्यातले त्यांचे असेलचे सत्यार रुपयाला हसना किती मदत करून का सरकार जन्नत कटोर विचार आला से आला मकाम अदा करो भले ढूंढ सकते एक डॉक्टर डॉक्टर के भीतर फाइल से तो एक डॉक्टर डॉक्टर एक डॉक्टर है एक डॉक्टर एक डॉक्टर से को बड़ा डॉक्टर
अनेक लोक त्यांची रूल येऊन राहील आणि त्यापैकी फुल जाऊन राहील आणि आपल्या हाताला त्यांच्या उपकर असलेली असलेले हेडिंग स्पर्धेत असलेले त्यांच्याप्रसार आम्हाला ते करता येईल मोना इतिहास एक जापने सांगले तुमचा लतीफा सांगले ते बदले करता होता सम्मान ज्यादा बदुआ तुमचे डॉक्टर आणि सम्मान ज्यादा दुआ मिळते तुमचे डॉक्टर हे तुमचा लतीफा सांगतो एक बादशाह असते आपले भंडारी हक्काकारांच्या मला सांगू करता होता कोकणाची सम्मान निश्चित आपला फोन करतो सम्मान निश्चित तो कोकणा लेवल कराने असले की जीप काढून त्याला फ्राय करून देतो सम्मान निश्चित तर दुसरीचा सांगतो कोकणाची सम्मान खराब चीज आपल्या देऊन सांगतो ते कोकणा लेवल करू आणि जीप का फ्राय करून देतो पाचशा जीप झालं काल तू निश्चितची गुण आहे आणि आज तुम्ही खराब चीज गुण वाटतं त्यांचं टप्पा भंडारी बदलता बदला बादशाह सलामत की जीप अगर नीची राधन भूती नीची दुनिया भीतर समूह इकट्ठा करे दुनिया भीतर समूह की इज्जत करते दुनिया भीतर हर कोणी की मांग करते आणि जीवच खराब झाल्यामुळे एकदम बदतरीन आणि एकदम खराब माणूस हा सर्व माणूस झाले आपली जीवेची हिफाजत आणि आमच्या बापाचे पण ते होते मी वरता जानता का अपने जीवे की हिफाजत करते इतने को पर को कट्टे चाहते को हमने से भली भली शरारत करते होते भली भली के चाहते ये करते होते मैं कहता था उनका से गाड़ी सोचे कितना तो उनका से गलत पड़े कितना उसने उनका से मारना सजा देना मगर फल चपल है की उलटे करे त्यांची सर्व सुद्धा होती आणि एक वाक्य में त्यांना सांगता सांगताना तुमचं बात करता मैं दुबई होतो सिद्दीक जाफरी की स्कूल पढ़तो होतो आज सिद्दीक इस्लामिक इंग्लिश स्कूल एड़ा मतलब जाफरी को काम करो तो बुजुर्ग का की मदद करो अमुक ने तो काम होगा फैसला को मांगा से आपको कहते स्कूल में काम है तो फला नंबर तुम दे दे क्या पैसे नहीं काका से आरबी लेटर करते होते तो बराबर करते होते नहीं बेल मार भाई मगर जाफरी बोला मसले पर काम करना पहले आपको का पहले आप मैं गेलो सामने पता एक झपटी से हटा के बैग गेलो अब असर करो आपके बापो करो अगर मैं हिंगा को कौन सिराज के संते हम गेलो तो तेरा ना बड़ा पता होता नहीं बाबा के हाथ तक हम थोड़े पता होते कौन दूरी करते हैं तेरा में माका ब्रेक नहीं कर काही केलं एक घडे मग डॉक्टर बाबा कोण बात माका जितकं वेळ चालते हजार वेळची बाबा करतो काही खबर नाही मला बाबा आहे कोण निर्णय पहिले बाबा आहे आणि मुसलमान भितऱ्याने 5 मिनिट 7 मिनिट भितऱ्या बोलतो नाही मैं उसे नहीं भितर मैं बड़े कामाचं बैठ मुझे काम तू करता कि मैं भितर आणि सबस काम करता नहीं तुम्ही सांगायला सबस करता मी भितर नाही होते आखिर कैसे को हुकुम अपने दारा में 3 मार्च है जामिया पकड़ रहे 3 मार्च है जामिया सारे पकड़ रहे आणि कम असं कधी कम होतो मैं 400 बैठ पूर पेटो इंतजार करून याचा पेटवता तरी मला वाटा केला मी याचा तुझे मित्र घेऊन 400 मीटर नाचतो करता वापस करतो अच्छा रे सर मैं सफर करता है आप इसके माता करो मीटर सामने वाले में घर में आप मीटर अल्लाह माफियत को बोला तो फ्रंट कौन मर या ना कर अल्लाह फोन मर सुरभई इब्राहिम फोन मर मुझसे मकलदारी फोन साथ में तुमको टेबल पे सापर तुमको फोन मारो मुझे फ्रंट के सामने आप दोबारा फोन करके आते हैं हमारे जाती है इंतजाम करता बंदा के बाद ये काम करे 5,000 रुपये का फॉर्मूला करे हमारा पेट्रोल दे आणि ते काम इसके मोबाइल में कितना टाइम होते किती समय तो कौन अच्छा
अच्छा म्हणून काय काम होतं सेकंडर हवाईचं काम चालतं 2 मिनिटामध्ये त्याचा फोन येऊन रुपये पावती 3 लाख रुपये होते आपल्याकडे 2 लाख रुपये असेल म्हणून मंत्री वापरले थोडे समूह उद्योगाला संबंधित मदत करून मुलं असं सगळ्या करतात 3 लाख रुपये फेडून दिले त्यानंतर त्यांना पगार सिराई मंगळी वापर सगळ्या करतात 2 लाख रुपये पॉकेट होता त्यानंतर साऱ्यांची पुस्तकांना संबंध पगार आमचे खरे लोक नाही बाबा दुबई पावला आमचे खरे लोक म्हणजे मामा करणार म्हणजे भिन्ना करणार कोणता किसी एक को नसरे करते वगैरे अल्लाह करके असले मफरत करो एक अपने संस्था आणि खुसूसन असले लोकांचे भावचे अधिकार करतात बापाचे अपने बापाचे करते होते बहुमाचे काम करू तर झाला हमेशा सामने पत्तेला बाकी पत्ते को नहीं काम करू शकते वाह उनका आमचे मजेशीर डायरेक्टर आणि मजेदार नजर रेड्डी इनाम मौलाना के वकील साहब दरखास्त करता कि मुस्तकरम काफला से छोड़े बाकी कचरा मौजूद मतलब कार्यकर्ता ये त्यांची जबाबदारी आमचा एक नसीहत शादी केले तेच आपण वापस रिट्रीट होत जातो तर जे काय आज ते कोणते असले ती प्रत्येक आम्ही मस्जिद सजवला मी त्यानंतर वसंता त्याला ही एकच त्यांची नसीहत उत्तर आम्ही अमल केले थे की आसलो बेसलो सगळं मजमा बोलता है आजी जो कोणती आमची मुबारक नक्कीच आणि जे कोणती सक्सेस तरी एक विजनरी एक विजन आणि मिशन पहिला विजन के जरूरत होते त्याच्यानंतर मिशन त्याचा सिंह सब चीजें सामने आएगी जत्ता से मिशन ते काम होते ना जत्ता समझे हाजी बाबा जत्ता लोग आम्ही हाजी बाबा करते होते आणि शायद नागपाडच्या हल्ली सगळा मेको त्यांचे गरीब लढत आहे आणि हल्ली मोहब्बतेला आमच्या असं त्याचा मी अपने बोलते बेटा अगर तुमका माणसे मिलली आणि कौमी अगर काम करू कस तरी कितना पाठ होऊन होते पल्ला है तुमची हिम्मत टूटली तुमची हिम्मत बस्त जाते तुम्ही आगे बढ़ून काम करू शकते नाही पाटल भाव करता पल्ला है अलबत्ता एकच ही तुमचे जनाबे तर हमेशा होगा के जे प्रतिष्ठित जगह तुम्ही काम करते सिर्फ आणि सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद होगा अगर तुमका यकीन है तुमका इत्मीनान है कि तुम्हें जो करते वाले बिल्लाह अल्लाह पर खुलूस इखलास आणि बिल्लाही से करते वाले आणि सिर्फ अल्लाह की रजा से करते वाले वरना के मुखालफत की बिल्कुल यही जगह एकादे को दे सकते हैं मेरे सोबत तुम्हें बस इतना अपनी जरूरत है तुम्हें आगे बढ़ा बस कहकर आपने कि अल्लाह करे जवाब नहीं तो एहसास आज तुम्हें हुए इस जगह वाली बात में मत जाओ कि इंशाल्लाह हमें कौम आके जल्दी काम से का होता है जिंदगी तब्दील महदूद जेको यही दुनिया आनी जानी यानी फानी दुनिया कायनात की हर से अल्लाह की मिलके अल्लाह ताला दुनिया जिंदगी हमें दावत से बोल सकता हूं कि जिंदगी हमची होगी लेकिन ये उसको पल हमची साथ और हमची घड़ी ये उसको लम्हा अल्लाह करता क्या कम सुल्ला अलमुन इल्लल्लाह के सिवाय अल्लाह से कौन ना कर ले कि आज हम इंदा वाला लेता ये घंटा ये मिनट में हम कैसे कार्य करें सिवाय अल्लाह से कौन ना करें कहते हैं हमची जिंदगी हमके सामने से का कहीं पर होते हो और सिर्फ अल्लाह से जवाब देते हैं साल से इंशाल्लाह जब तक हमसे माशरा की बुराई से फिर से कहते हैं जल्दी से मुझे कहने के काम इंशाल्लाह करता हम इंशाल्लाह के काम वो आज जज्बा ये बलबला हम इंशाल्लाह हुए हम ये विजय से हम इंशाल्लाह एक इरादा से हम इंशाल्लाह का बोलता हूं कि इंशाल्लाह वो इरादा में दिनों में तो इंशाल्लाह आज जब ये महफिल जब ये मुबारक सबसे नामी आज में सजोला इंशाल्लाह ये नसीब आपकी कामयाब इंशाल्लाह सलाम हम के मकसद पर इंशाल्लाह कामयाब अल्लाह ताला हम का अमल करून कमी नाही करो आणि त्याच्या क्षेत्र पूर्ण सिद्धांती अल्लाह ताला आमची जात तर आमका त्याने मुक्तसिर करो आमीन त्यांची बारबार नफरत करो सय्या अपने तकदर करो आमीन बात दावाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह पाक की नसीहत पर अमल करके सच्चे नाटकों कौम में मिलके आगे बढ़ते वाले आणि बावजूद आज इस्मानी मनहज इलाला ने शिकायत के बावजूद अपने काम करते वाले नसीहत पर अमल करके आगे बढ़ते वाले अल्लाह ताला का मजीद आगे बढ़ो
ते दोन्ही आमची मुख्तसर ऊपर आमचे हाजिरीन में शरीक झाले और नाय कराम आणि गायकराम आणि समाजाचे बुजुर्ग यांचा माझा शुक्रिया अदा करता आणि ही मजलिस इख्तिताम मौलाना अब्दुल आदिया साहब खालिद मौलाना से दुआ पर जो इख्तिताम करता मैं दरखास्त करता कि दुआ पर मजलिस इख्तिताम maka doa terus anda ini आपके जनाब मौलाना साहब बात इसके बाद एक काफी सामने है जनाब आसिफ रहमान साहब मुनीरी जो बसे काम किया हे हालात चिंता के हमके कौम बल्कि सभी दुनिया वफातों के शिकार सारी हमें के सिलसिला में जे व्यक्ति मानसिक देखभाल के नमूना पर काम किया बाकी आपण होते नाही आणि खास करून क्या प्रदूषण आज कौमाचे दिल्ली दीनी मजहबी समाजी तालीमी इदारा के सरबराह मोहसिन कौम जनाब अलहाज मोहिउद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह के नावासरी मंसूब के को हमके सुबह बोले कौमा सबक जिला अल्लाह ताला के त्यांचे ती एवढी खिदमत ऊपर अल्लाह ताला हमारे आता करो बाकी जबरदस्त शख्सियत मोहिउद्दीन मुनीरी जी आणि अल्लाह ताला त्यांची तमाम खिदमत को आज करो आम्ही यांची जगती जनाबाचे प्रमाण साहेब केला अल्लाह ताला त्यांचा सही मायामध्ये अजर नसीब करो आणि आमच्या धर्माको त्यांची सही बदलदानी की तौफीक अता करो बाकी माफ करेगा वतन के बड़े काम है वतन का साथी माफी का हासन ओके आप के हासन वक्त लना बिखाई वजह नबरा और तकमीला قبل عالمنا من الرحمة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تسمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على एक मिनट
त्या फोटोचा खाल दोन भाव घे अभी एक अब रखी ना एक मिनिट वेट अरे यहाँ पे